Assalamu alaikum students. Let's begin with another lecture. Today you will be learning about subject-verb agreement. Now what is it? It is a grammatical rule that the verb or verbs in the sentence must match the number, person and gender of the subject. But English में different हिसाब है. English में verbs only need to match the number and sometimes the person. एक मतलब उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं हम. ये एक ग्रामेटिकल रूल है. इसमें ये होता है कि जो वर्ब्स हैं और सब्जेक्ट है ये मैच होने चाहिए, इनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए. इंग्लिश में वर्ब्स जो होते हैं उन्हें मैच होना चाहिए नंबर से, ठीक है, या समटाइम्स इवन पर्सन. अभी डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा ठीक से समझ आए. So basically the rule is that a subject must agree with its verb in number. So a subject must agree with its verb in number. अब number से क्या मतलब है? Number means whether it is singular or plural. It's a simple rule. A subject must agree with its verb in number. That is why I taught you singular and plural forms of nouns, pronouns, and verbs so that you are able to understand this lecture better. So there are many rules that you have to keep in mind for subject-verb agreement. There are many rules, but I have only included 12 rules in this video, and if we have time, we will even cover more. But I think these are the rules. These are some important rules that you need to know. First rule is that if the subject is singular, the verb must be singular too. So basically, अगर subject singular है, single है, तो verb भी singular use होगा. Verb की भी singular form use होगी. We have an example here. She writes every day. So here she is the subject and writes is the verb. अब she is a pronoun, right? It's a pronoun और हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि she is a singular pronoun. ये singular है, right? Singular pronoun. She writes. अब she writes every day. इस sentence में verb कहाँ है? Writes. Writes is the verb. ये verb जो write है, writes, ये है verb. And आपने अगर लेक्चर देखा हो singular and plural verbs तो आपको पता होगा जब इसके एंड में s आता हो ये singular verb होता है. Singular यानी she writes every day, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास subject singular था इसीलिए हमने verb की भी singular form use की. She writes every day. Similarly, he walks to school every day. Walks he, singular, walks, again singular verb. तो हम इस तरह इसे करेंगे. ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड में रखिएगा. लास्ट में if the subject is singular, verb must be singular too. अगर subject singular है तो verb की भी हम singular form use करेंगे. Let's take a look at the next rule, and it is that if the subject is plural, अगर subject plural होगा, the verb must also be plural. हमारा first rule क्या था? If the subject is singular, the verb also has to be singular. And ये rule क्या है? If the subject is plural, the verb must also be plural. अगर subject plural है, the verb भी plural होना चाहिए. ये भी बहुत important rule है. ये जो first two rules है, you have to keep in mind. Even if you forget all the other rules, just keep these two rules in mind. We have an example here. They write every day. They यहाँ पे क्या है? हमारे पास subject है. Write हमारे पास है verb.
write लिखना एक्शन है, so write is verb. They write every day. अब इस सेंटेंस में they सब्जेक्ट है, write verb है. अब जो they है ये प्लूरल है, हम ज्यादा सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. We're talking about a lot of people. They, ठीक है. So they here is plural pronoun. हमने जो सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस कवर किए थे, अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा दे इज प्लूरल प्रोनाउन. अब ये जो हमारे पास राइट है, ये क्या है? राइट हमारे पास है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. हमारे पास राइट क्या है? प्लूरल फॉर्म है राइट. दे राइट एवरी डे. अगर आपने लेक्चर देखा हो सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स पे, हमने ये चीज कवर की थी कि जो प्लूरल वर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दे राइट एवरी डे. यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल. फॉर एग्जांपल दे वॉक टू स्कूल एवरी डे. दे अगेन हमारे पास क्या गया? सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है. दे वॉक, वॉक क्या हो गया? प्लूरल वर्ब. टू द स्कूल एवरी डे, तो ये क्या हो गया? दे वॉक. अब आपने अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. ये दो रूल्स आपने माइंड में रखने हैं लाजमी. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now let's take a look at the third rule. Two or more subjects joined by and are considered plural and require a verb form without an s. What does it mean? It means that अगर एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और उन्हें सेंटेंस में ज्वाइन किया गया है एंड से, तो वो प्लूरल कंसीडर होते हैं. प्लूरल, तो उसके लिए हम वर्ब की वो फॉर्म लगाएंगे जो एस के बगैर हो. वर्ब की वो फॉर्म वहां पे लगेगी जो कि एस के बगैर हो. यानी कि एस के बगैर कौन सी फॉर्म होती है? आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, वर्ब, वो वाली वर्ब की फॉर्म जिसके आगे एस ना लगा हो वो प्लूरल फॉर्म होती है. प्लूरल फॉर्म होती है. यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं एक सेंटेंस में जो कि एंड से ज्वाइन हुए हैं, उन्हें हम प्लूरल कंसीडर करेंगे और उनके लिए हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे. लेट्स टेक अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स. जॉश, जॉन एंड बॉब वॉक टू द स्टोर. अब हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं इस सेंटेंस में? हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स हैं. हमारे पास जॉश है, हमारे पास जॉन है और हमारे पास बॉब है. हमारे पास ये है हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स, जॉश, जॉन एंड बॉब. और इनको कौन ज्वाइन कर रहा है? एंड. ये जो वर्ड एंड ऐसे ज्वाइन हुए हैं, तो अब ये क्या है? ये प्लूरल कंसीडर्ड होंगे. प्लूरल, तो इनके लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? प्लूरल फॉर्म. जॉश, जॉन एंड बॉब वॉक टू द स्टोर. वॉक जो है, अब ये है हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉक. अगर वॉक्स होता तो वो सिंगुलर फॉर्म होती. यहाँ पे हमने वॉक लगाया क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा है, सब्जेक्ट्स प्लूरल है, तो इसलिए हमने वर्ब भी प्लूरल यूज किया है. जॉर्ज, जॉन एंड बॉब वॉक टू द स्टोर. लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. अब नेक्स्ट एग्जांपल है बॉब एंड हिज ब्रदर्स वॉक टू द स्टोर. हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हमारे पास बॉब है, ठीक है, वन. फिर है his brothers, ठीक है. हमारे पास ज्यादा सारे सब्जेक्ट्स हैं और हमने किससे ज्वाइन किया हुआ है? इस एंड से. तो अब क्या होगा? क्योंकि हम इन्हें प्लूरल कंसीडर करेंगे, ये प्लूरल है, ज्यादा सारे लोग हैं. बॉब और उसके भाई भी ज्यादा सारे लोग हैं, राइट? बॉब एंड हिज ब्रदर्स. तो ये क्या होगा हमारे पास? हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? प्लूरल फॉर्म लगाएंगे. Bob and his brothers walk to the store. Walk हमारे पास प्लूरल फॉर्म है वर्ब की. Now let's move on to the next rule. If a subject is modified by the words each or every, that subject is singular and will take a verb form that ends in s.
नाउ व्हाट डज इट मीन? अगर हमारे पास सब्जेक्ट ऐसा है, उसे मॉडिफाई किया है ईच या एवरी जैसे वर्ड्स के साथ, ईच और एवरी जो वर्ड्स हैं, अगर ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई करें तो हम उस सब्जेक्ट को सिंगुलर कंसीडर करेंगे और उसके लिए हम वर्ब की वो फॉर्म यूज करेंगे जिसके एंड में एस आता हो, यानी क्या हो, ये सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर, राइट? हमने पिछली स्लाइड में देखा था ना, वो वर्ब के फॉर्म्स जिनके एंड में एस ना हो वो प्लूरल होती हैं और वर्ब की वो फॉर्म्स जिनके एंड में एस आता हो वो सिंगुलर होती हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं तो फिर आपको ये रूल क्लैरिफाई हो जाएगा। हमारे पास एग्जांपल है, ईच बॉय एंड गर्ल वॉक्स टू द स्टोर। इन दिस एग्जांपल वी हैव, if you take a look at it, we have a boy, we have boy and girl. अब आप सोच रहे होंगे we have two subjects, right? Then why we are using singular form? हमारे पास जब दो सब्जेक्ट्स हैं और उन्हें ज्वाइन भी हमने एंड से किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड है ना ईच, इसने इनको मॉडिफाई कर दिया है, इनको मॉडिफाई कर दिया है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा ईच, अगर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर होता है, प्लूरल नहीं। तो यहाँ पे ईच का वर्ड ये मॉडिफाई कर रहा है इनको, हमारे सब्जेक्ट्स को, बॉय एंड गर्ल। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, बॉय एंड गर्ल वॉक टू द, अ बॉय एंड अ गर्ल वॉक टू द स्टोर, तब हम उन्हें प्लूरल कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पे ये जो वर्ड है ईच, इसने मॉडिफाई कर दिया है इनको, सब्जेक्ट्स को, तो अब ये कंसीडर होंगे सिंगुलर। तो इसीलिए हम जो वर्ब की फॉर्म है वो भी सिंगुलर यूज करेंगे। और सिंगुलर फॉर्म्स वर्ब की वो होती हैं दैट एंड इन एस, जिनके एंड में एस आता हो। तो बॉय, ईच बॉय एंड गर्ल वॉक्स टू द स्टोर, तो हमने ईच के हिसाब से इस वर्ब को चेंज किया है। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि हम इसको भी सिंगुलर कंसीडर किया और हमने वर्ब को भी, फिर उसकी वजह से हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है। ये वर्ब हमने सिंगुलर यूज किया है। Each boy and girl walks to the store. Now on to the fifth rule. If plural subjects are joined by or, nor, or but, the verb must only agree with the subject that is closest to it. It means कि अगर ज़्यादा सारे subjects हैं एक sentence में but उन subjects को join किया गया है or, nor या but जैसे अल्फाज से, तो verb हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो हम जो वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट होगा ना, जो उससे सबसे क्लोज सब्जेक्ट होगा, हम उसके हिसाब से वर्ब चूज करेंगे, वेदर हम चूज करेंगे वेदर इट शुड बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो कि उससे सबसे ज्यादा क्लोज होगा। लेट्स टेक अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। Either Bob or his brother walks to the store. Either Bob or his brother walks to the store. हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, एक तो हमारे पास है बॉब और दूसरा है उसका भाई। So there are two people here, there are two subjects. ठीक है, there are two subjects. पर अब हम वर्ब कैसे चूज करेंगे? हमारे पास ये है वर्ब walks, right? We have this verb walks. अब हम इसकी फॉर्म कैसे चूज करेंगे? We will choose it based on this subject that is closest to it. ये जो सब्जेक्ट है ब्रदर, ये इसके सबसे ज्यादा क्लोज है, तो हम इसके हिसाब से वर्ब चूज करेंगे। ब्रदर सिंगल है, एक है, तो हम उसके हिसाब से वर्ब चूज करेंगे। क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है तो हम वॉक्स जो वर्ब है वो भी हम सिंगुलर चूज करें। तो वॉक्स सिंगुलर फॉर्म है ना वर्ब की, हमने डिस्कस किया था, वर्ब जिनके एंड में एस लगा वो सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे वॉक्स सिंगुलर है, यानी कि हमने ब्रदर्स के हिसाब से वर्ब की फॉर्म चूज की है वॉक्स, हमने बॉब्स के हिसाब से चूज नहीं किया। Either Bob or his brother walks to the store, तो हमने walks जो verb है उसकी फॉर्म है वो हमने ये जो सब्जेक्ट है brother उसके हिसाब से चूज की। Now on to the next example.
neither Bob nor his brothers walked to the store. अब हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास आ गया बॉब, ठीक है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट और फिर उसके भाई जो कि ज्यादा सारे हैं, भाई ब्रदर्स ज्यादा है ना, ब्रदर्स, तो ब्रदर्स क्या है, प्लूरल। अच्छा अब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, राइट, बॉब हो गया और उसके भाई हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स ज्यादा सारे ब्रदर्स है ना, ये देखिए एस लगा हुआ है यानी ज्यादा सारे भाई हैं, राइट, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल है, ब्रदर्स प्लूरल है। तो हम अब इसके हिसाब से, अब जैसे कि बॉब भी है यहाँ पे, ब्रदर्स भी है, बट हम बॉब को के हिसाब से चूज नहीं करेंगे, हम ये जो वर्ड ब्रदर्स है इसके हिसाब से हम वर्ड की फॉर्म चूज करेंगे। तो हमने, क्योंकि ब्रदर्स जो है प्लूरल है, तो हमने उसके हिसाब से वर्ब चूज किया जो कि है वॉक, वॉक प्लूरल फॉर्म है, हमने इस ब्रदर्स जो वर्ड है इसके हिसाब से वॉक चूज किया। neither Bob nor his brother walked to the store। तो ये चीज आपने याद रखनी है जब सब्जेक्ट्स इन जैसे वर्ड्स के साथ ज्वाइन हो, जैसे और, नॉर, बट, ठीक है, तब हम जो वर्ड, जो सब्जेक्ट क्लोजेस्ट होगा, सबसे करीब होगा वर्ड के, हम उसके हिसाब से वर्ड की फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट बॉब बट हिज ब्रदर्स वॉक टू द स्टोर। ठीक है, हमारे पास अगेन बॉब आ गया, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ये सब्जेक्ट आ गया और फिर ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स, उसके भाई, भाई ज्यादा सारे हैं, ब्रदर्स, राइट, इसके एंड में देखिए एस लगा हुआ है, ठीक है, बॉब को भूल जाए, ठीक है, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसको भूल जाए, हम ये वर्ड देखेंगे जो दूसरा है ब्रदर्स, राइट, इसके एंड में एस है, सब्जेक्ट ज्यादा सारे हैं, प्लूरल, राइट, तो हम इसके हिसाब से वर्ब सिलेक्ट करेंगे और हमने क्या सिलेक्ट किया, वॉक, वॉक हमने प्लूरल फॉर्म सिलेक्ट की, वॉक, not Bob but his brothers walked to the store। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, not Bob but his brother walks to the store। अब अगेन हमारे पास सब्जेक्ट है, एक हमारे पास बॉब है और उसका भाई, अब ये एक भाई है, ज्यादा सारे भाई नहीं है, सिंगुलर, राइट, अब ये हमारे पास हालांकि दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, वन और टू, राइट, बट हम इन्हें प्लूरल कंसीडर नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि इनके बीच में बट आ रहा है, तो जो क्लोजेस्ट वर्ड होगा वर्ब से, ये हमारे पास वॉक्स वर्ब है, राइट, हम उसके हिसाब से करेंगे चूज। तो क्या होगा, बॉब को भूल जाए, नॉट बॉब बट हिज ब्रदर, ब्रदर अब क्या है, सिंगुलर है, एक भाई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की भी हम सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, तो हमने यहाँ क्या यूज किया, वॉक्स, ब्रदर वॉक्स, ये क्या है, एस, आपको मैंने बताया था वर्ब की वो फॉर्म जिनके एंड में एस आता हो वो क्या होती हैं, वो होती हैं सिंगुलर फॉर्म्स। तो नॉट बॉब बट हिज ब्रदर वॉक्स टू द स्टोर, तो हमने ब्रदर के हिसाब से, ये जो हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ है जो सबसे करीब था इस वर्ब के, हमने उसके हिसाब से डिसाइड किया, ब्रदर वॉक्स टू द स्टोर। Now on to the next rule. When a collective noun such as family, group, committee or class is the subject, the verb will end in s, which means singular. Verb will be singular. अब collective nouns क्या होते हैं? If you remember, हमारा lecture जो nouns पे था, उसपे हमने nouns की सारी types पढ़ी थी। Collective nouns हमने देखा था ना, वो words हैं जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, जैसे कि फैमिली, क्लास। तो यहाँ पे जो वर्ड फैमिली है, अच्छा हमारे पास ये नीचे एग्जांपल है, माय फैमिली विद ऑल माय क्रेजी कजन्स ऑलवेज वॉक्स टू द स्टोर। अब कलेक्टिव नाउन्स को हमने डिस्क्राइब किया था, वो वर्ड्स होते हैं जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि आर्मी, पुलिस, फैमिली, क्लास, तो ये सब क्या करते हैं, सबको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट। अब फैमिली क्या होता है, फैमिली जो वर्ड है, ठीक है, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, there are parents, siblings, grandparents, uncle, aunts, so many people, ठीक है, make up a family, बहुत सारे लोग होते हैं ना फैमिली के अंदर, बट हम फैमिली को एज वन यूनिट ट्रीट करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एक यूनिट कंसीडर करते हैं, फैमिली एक यूनिट है, राइट, जो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है, बट इसको हम प्लूरल कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसे एज
वन कंसीडर करेंगे एज वन यूनिट। और हमने उस लेक्चर में देखा था ऑफ कोर्स कहीं पे एक्सेप्शंस होती हैं और मैंने आपको उस टाइम उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी थी लेक्चर में, ठीक है, बट यहाँ पे हम अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये रूल है कि जब हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करें होते तो सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो कलेक्टिव नाउन हो जब, तो फिर वर्ब की हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। माई फैमिली विद ऑल माई क्रेजी कजन्स ऑलवेज वॉक्स टू द स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वॉक्स का वर्ड क्यों यूज किया, ये है वॉक्स वर्ब है, ठीक है, और हमने ये देखिए इसके एंड में एस है, यानी कि क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, वॉक्स सिंगुलर फॉर्म है। और हमने ये सिंगुलर फॉर्म क्यों चूज किया, क्योंकि ये जो फैमिली है ना, ये सब्जेक्ट, ये हम सिंगुलर है, ठीक है, ये एक यूनिट है, वी आर ट्रीटिंग इट एज अ यूनिट। बेशक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं बट फैमिली इन इटसेल्फ एक यूनिट है, ठीक है, जो बेशक बहुत सारे लोगों के साथ मिलके बना है। तो फैमिली एक यूनिट है, एक है, सिंगुलर है, तो ये क्या आएगा, ये सिंगुलर है तो इसके फिर वर्ब भी सिंगुलर होगा। माय फैमिली विद ऑल माय क्रेजी कजन्स always walks to the store. Now we are on to the seventh rule. When the subject is a unit of measurement of time, distance, money, weight, etc., the unit is considered singular and the verb will end in s. इसका मतलब ये है, अगर सब्जेक्ट जो है वो कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, टाइम का या डिस्टेंस, मनी, वेट, जो भी मेजरमेंट यूनिट हो, उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, उसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो भी हो, वो बेशक टाइम का हो, डिस्टेंस का हो, मनी का हो, वेट का, और भी कोई भी मेजरिंग यूनिट हो, ठीक है, उसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे। इसलिए हम वर्ब वो वाला यूज करेंगे जिसके एंड में एस हो, यानी कि हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। 10 pounds of chocolate is too much to eat at once. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, 10 pounds. We have here 10 pounds. ये है सब्जेक्ट। अब जो 10 है, 10 ऑफ कोर्स ज्यादा सारी क्वांटिटी है, राइट, ज्यादा सारी क्वांटिटी है 10 pounds, ठीक है, बट यहाँ पे मेजरिंग यूनिट है, यहाँ पे पाउंड्स, पाउंड मेजरिंग यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है, सिंगुलर कंसीडर होगा, इसलिए हम वर्ब भी, अब यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब क्या है, 10 pounds of chocolate is here is वर्ब, तो हम is भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर, क्योंकि हमारा अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। आपको पता है इसकी जो प्लूरल फॉर्म आर होती है, राइट, तो हम आर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम is यूज करेंगे, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को, ये जो 10 pounds है, हम इनको एक यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं। 10 pounds of chocolate is too much to eat at once. Now on to the next example. 13 feet of kite string tangles very easily. Now 13 feet, feet is again क्या है, measuring unit है, right, 13 feet कितने ज्यादा सारे होते हैं, right, बट ये measuring unit है feet, तो हम इसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे, सिंगुलर। 13 फीट, बेशक 13 है, 13 ज्यादा सारा है ना, 13 फीट बहुत सारे फीट होते हैं, राइट, बट स्टिल विल कंसीडर इट एज ए यूनिट, ठीक है, सिंगुलर ऐसे कंसीडर किया जाएगा। 13 feet of kite strings, 13 feet of kite string tangles very easily. Tangles, now tangles यहाँ पे verb है हमारा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वर्ब है वो भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे टेंगल, आपको पता है वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, टेंगल्स जो है, जो यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास इसकी सिंगुलर फॉर्म। 13 feet of kite string tangles very easily. तो 13 feet सिंगुलर था क्योंकि ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो हमने इसकी वजह से जो वर्ब है वो भी हमने सिंगुलर यूज करना है, tangles not tangle.
Now on to the next one. In a question or in a sentence that begins with there or here, there or here, the verb will often come before the subject. ठीक है, अब ये क्या रूल है अभी देख लेते हैं. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है या सेंटेंस है जो कि शुरू होता है देयर या हियर इस टाइप के वर्ड्स से, ठीक है, क्वेश्चन है या कोई भी सेंटेंस है जो इस टाइप के वर्ड्स से यूज होता हो, तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के यूजली आपने देखा होगा ना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, बट इस केस में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा. वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा instead of after it. Let's take a look at these following examples. Where is my sweater? Where? This word here, because of this word here, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला वर्ड आ गया. There, here, where, ठीक है, काफी सारे वर्ड्स होंगे यहाँ पे. ठीक है, where, ठीक है, इसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, हमारा वर्ब जो है वो पहले आएगा और हमारा सब्जेक्ट क्या, स्वेटर है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब पहले आएगा. Where is my sweater? Let's take a look at the next example. There are many sweaters. There again, ये by the way ये क्वेश्चन था ना, ये देखो ये क्वेश्चन था, right? ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन था ना, जैसे हमने आपको देखा in a question or in a sentence that begins with there, here, ठीक है, इस टाइप के वर्ड से, तो वो क्या होगा, हम उसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले. अब ये क्वेश्चन था ना, राइट, तो इसमें क्या हुआ, ये वर्ब हमारा आ गया सब्जेक्ट से पहले. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. देयर आर मेनी स्वेटर्स. अब क्या हो गया, अब ये सेंटेंस है हमारे पास, सेंटेंस है जो कि शुरू हो रहा है वर्ड देयर से, राइट, देयर से शुरू हो रहा है. तो उस केस में क्या होगा, अगेन वर्ब पहले आएगा, हमारा वर्ब है आर और स्वेटर्स हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या हुआ, वर्ब हमारे सब्जेक्ट से पहले आ रहा है. There are many sweaters. Now on to the 9th rule. The verb must agree only with the subject. जो verb है must only agree with the subject. जो verb है वो सिर्फ subject के साथ agree होना चाहिए. Must only covered है, ठीक है, only agree with the subject. Now let's take a look at its example. The biggest problem we face is all the squirrels that have rabies around here. अब इस sentence में there's a lot going on in this sentence, but हम सिर्फ subject जो है, अब इस sentence का subject क्या है, बाकी चीजें छोड़ दें, ठीक है, squirrel, rabies वगैरह ये सब कुछ छोड़ दें, ठीक है, सब कुछ छोड़ दें. अब हमारा subject क्या है, हम किसी problem के बारे में बात करें, the biggest problem, तो यानी कि जो problem है ये subject है हमारे पास, ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसके बारे में बात करें ना हम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ठीक है, हमने सिर्फ इसको देखना है, चलो ठीक है, सिर्फ, वी विल नॉट बी कंसिडरिंग अदर वर्ड्स की स्क्वेरल्स जो ज्यादा सारी हैं, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर बीमारी रेबीज है, ठीक है, हमने इसको भी कंसीडर नहीं करना, ठीक, किसी चीज को कंसीडर नहीं करना. जस्ट टेक अ लुक एट द सब्जेक्ट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, राइट. अब प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट है, राइट, सब्जेक्ट है. The biggest problem we face is all the squirrels and that have rabies around here. तो यहाँ पे verb क्या है सेंटेंस में, is, जो is का वर्ड है ये है verb, और ये हमने किसके हिसाब से, बस हमने verb और subject agreement किया, that is it. हमने बाकी किसी चीज के हिसाब से इन्हें नहीं डिसाइड किया, ठीक है. प्रॉब्लम एक की प्रॉब्लम की बात करें, the biggest problem, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एक है, सिंगुलर है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, यू फेस इज, तो इसलिए हमने जो वर्ब है उसकी भी हमने सिंगुलर फॉर्म यूज किया, इज सिंगुलर फॉर्म है, आर प्लूरल फॉर्म होती है ना, राइट, तो हमने सिर्फ उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड किया, इज. Okay,
Next rule is that indefinite pronouns are usually singular and take a verb form that ends in s. जो indefinite pronouns होते हैं वो singular होते हैं. Indefinite pronouns के बारे में हमने पढ़ा था pronouns के lecture में. हमने सारी pronouns की types cover की थी. उसमें indefinite pronouns भी था जिसमें हम किसी specific या particular चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते. ठीक है. Indefinite pronouns are usually singular and take a verb form that ends in s. जो वर्ब की वो वाली फॉर्म दैट एंड्स इन एस कौन सी होती है? सिंगुलर फॉर्म होती है. वो क्या मतलब सिंगुलर फॉर्म? ठीक है, सिंगुलर. इनडेफिनिट प्रोनाउंस को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, इसलिए जो उसके साथ वर्ब यूज होता है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होता है. लेट्स टेक अ लुक एट फॉलोइंग एग्जांपल्स. एवरीवन वॉक्स टू द स्टोर. अब यहाँ पे indefinite pronoun कौन सा? everyone. Everyone here is indefinite pronoun. ठीक है, तो indefinite pronoun है तो everyone और ये subject भी है. everyone walks to the store. ठीक है, तो अब verb कहाँ है? walks. walks क्या है? हमारा verb. तो हमने verb की वो फॉर्म लगाई है जिसके एंड में s आता है, यानी ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है. everyone walks to the store. ये जो indefinite pronoun है उसको हमने singular consider किया और फिर इसलिए हमने जो verb है वो भी singular choose किया. Everyone walks to the store. Next example is everything comes back eventually. Everything हर चीज. ये क्या है हमारे पास? indefinite pronoun. Indefinite pronoun है, that is why in this sentence, everything comes back eventually. Everything is indefinite pronoun. It's the subject in this sentence. तो और इसको हम singular treat करेंगे. It's singular. तो हमारे पास जो word है comes, ये क्या है? verb, आना. Of course, it's an action, so it's a verb. तो हमने कौन सा verb use किया? हमने singular verb use किया है, right? So subject and verb are both singular. Just remember that indefinite pronouns are usually singular, so we use singular form of verb with it. On to the next rule. Gerunds can be subjects and follow all the same rules that we have discussed before. So what are gerunds? Beta, gerund verbs are those words जिनके end में ing आता है. जिनके end में ing आता है वो क्या होते हैं? Gerunds. So these words can be subject to. ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि depending on where the word is placed in the sentence, it can take different role. राइट, तो जैसे कि नीचे अब एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे रनिंग, भागना. यूजुअली भागना क्या होता है? वर्ब होता है ना. भागना एक एक्शन होता है. आप इसे वर्ब समझेंगे, बट यहाँ पे ये सब्जेक्ट है. ठीक है, रनिंग विद डक्स इज माय फेवरेट स्पोर्ट. यहाँ पे जो भागना है रनिंग, इट्स अ सब्जेक्ट. भागना एक एक्शन है ना. ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट है रनिंग, भागना. ठीक है, रन आपको पता है दूसरी फॉर्म होती है, पर उसके आगे अगर ing आता हो, जिसके आगे ing आता हो तो वो वर्ड्स होते हैं gerunds. ठीक है, तो यहाँ पे gerunds. रनिंग विद डक्स इज माय फेवरेट स्पोर्ट. यहाँ पे भागने की बात हो रही तो भागना ऑफ कोर्स सब्जेक्ट है. रनिंग विद डक्स इज, तो हम ये जो वर्ब है इसके हिसाब से लगेंगे. रनिंग, भागना, इज, तो ये इसके हिसाब से हमने यहाँ क्या लगाया? इज. ठीक है, running with ducks is my favorite sport. हम ducks के हिसाब से नहीं वर्ब चेंज करें, किसी और चीज के हिसाब से नहीं. हमारे पास जो सब्जेक्ट है भागना, भागना, हम उसके हिसाब से वर्ब चूज कर रहे हैं. Running with ducks is my favorite sport. Next example is running to the store and flying through the air are my favorite sports. अब क्या बात हो रही है? Running to the store, store की तरफ भागना, और flying through the air, हवा में उड़ना. ठीक है, ये मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स है. ठीक है, अब क्या है? हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे. एक तो हमारे पास है रनिंग, भागना, रनिंग टू द स्टोर, एक चीज हो गई. फिर
एंड, ये देखिए एंड, और हमने यही बात करें ना कि वो वाले रूल्स अप्लाई होंगे यहाँ पे भी, इनके साथ भी, जो कि जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे जब गेरेंट्स वर्ब जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट्स हों। तो यहाँ पे फिर दूसरा क्या है, फ्लाइंग इज द सब्जेक्ट, भागना और उड़ना, ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हमारे पास रनिंग भी सब्जेक्ट हो गया और ये भी सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या किस वर्ड से जुड़े, एंड से। और ये चीज हमने रूल पढ़ा था ना, जब ज्यादा सारे सब्जेक्ट्स और एंड से जुड़े हो तो वो प्लूरल कंसीडर होते हैं, राइट। तो रनिंग टू द स्टोर एंड फ्लाइंग थ्रू द एयर आर माई फेवरेट स्पोर्ट्स, तो इसलिए हमने आर का वर्ड यहाँ पे यूज किया है, हमने प्लूरल फॉर्म यूज की है, क्योंकि ये दो मिला के सब्जेक्ट वन, हमारे पास सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू, ठीक है, और ये एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, प्लूरल है, दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो इसलिए हमने जो वर्ब लगाया है वो है आर। रनिंग टू द स्टोर एंड फ्लाइंग थ्रू द एयर आर माई फेवरेट स्पोर्ट्स। आपने जैसे कि देखा ये बोथ these both words running and flying are gerunds, क्योंकि इनके एंड में क्या है, ing। fly, देखिए जैसे fly होता है वर्ड fly, उसके एंड में ing आया तो वो क्या हो गया, gerund। run जैसे वर्ड होता है उसके एंड में ing आया तो वो क्या हो गया, gerund। so these both are gerunds, so they can be subjects too, और जहाँ पे ये देखिए इन sentences में they function as subjects। Okay, on to the last rule. When using who, that, or which, you must look to the noun these relative pronouns are referring to in order to determine whether the subject is singular and will have a verb ending in s, or is plural and will have a verb without an s. अब इसका मतलब क्या है, आपको अगर प्रोनाउंस का लेक्चर याद हो तो उसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, ठीक है, हमने प्रोनाउंस की सारी टाइप्स कवर की थी, हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, उसमें हमने बताया था कि कौन से वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब जैसे जब रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होता है जैसे कि हु, दैट और विच, इस टाइप के जब वर्ड्स यूज होते हैं तो अब हम कैसे वर्ब चूज करेंगे, ठीक है, हम कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है। अब ये हु हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, बट जिसकी भी बात हो रही है उस सब्जेक्ट को हम देखेंगे कि वो जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। ये जो हु जिसको रेफर करोगा हम वो देखेंगे कि ये वो चीज सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर उसके हिसाब से वर्ब हम लगाएंगे कि हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट दीज फॉलोइंग एग्जांपल्स। द गर्ल्स हु ईट केक आर हैप्पी, द गर्ल्स हु ईट केक आर हैप्पी। अब जो हु है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, हमारे पास relative pronoun, राइट, relative pronoun है ना हु, बट ये हु किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हु इन गर्ल्स को, वो लड़कियां जो, ठीक है, वो लड़कियां जो, ठीक है, तो ये हु किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इन लड़कियों को, ठीक है, इन लड़कियों को, राइट। द गर्ल्स हु, ठीक है, ईट केक, ईट हमारे पास क्या है, खाना, वर्ब है, ठीक है, ईट केक आर हैप्पी, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, ईट और आर, ठीक है, दोनों हमारे पास वर्ड्स हैं। द गर्ल्स हु, अब हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आ रही है, किसको, किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों के बारे में, ज्यादा सारी लड़कियां, ये देखिए एस लगा हुआ है, यानी सारी बात है, ज्यादा सारी लड़कियां यानी प्लूरल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमने अब वर्ब्स कौन से लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल है तो हमने क्या करना है, हमने वर्ब की भी प्लूरल फॉर्म्स लगाने हैं। ईट, ईट आपको पता है वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, ईट सिंगुलर फॉर्म होती है, हमने ये चीज डिस्कस की है ना, जब वर्ब्स के एंड में एस आता हो तो सिंगुलर होते हैं और ना आता हो तो फिर क्या होते हैं, वो प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे ईट जो है हमारे पास प्लूरल है, हमने प्लूरल वर्ड यूज किया। केक, आर हैप्पी, आर आपको पता है इज आर, ये भी वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, ये भी सॉरी वर्ब्स हैं, राइट। तो आर जो है वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, इज सिंगुलर फॉर्म है, और ये क्या है, आर प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि गर्ल्स थी ज्यादा सारी थी, प्लूरल थी, तो हमने वर्ब्स भी हैं वो प्लूरल लगाए हैं, ईट और आर दोनों वर्ब्स हमने प्लूरल लगाए हैं। द गर्ल्स हु ईट केक आर हैप्पी। Now on to the next example. The girl who eats cake is happy.
अब क्या हमारे पास अगेन रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है, ठीक है, हु। अब ये हु किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस लड़की को, द गर्ल। अब हमारे पास एक ही लड़की है, ज्यादा सारी लड़कियां नहीं, एक है, तो ये क्या सिंगुलर है, लड़की एक लड़की है। अब इसके हिसाब से हम वर्ब चूज करेंगे। हमारे पास कौन कौन से वर्ब हैं सेंटेंस में, खाना और इज, ठीक है, ईट्स और इज। द गर्ल हु ईट्स केक इज हैप्पी। ईट्स क्या है, अब हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिंगुलर। हमने ये चीज डिस्कस की थी कि वर्ब जिनके एंड में ऐसा होता है वो सिंगुलर होते हैं, राइट। तो इसलिए हमने ईट्स लगाया। केक इज हमने इसलिए लगाया क्योंकि इज सिंगुलर है, आर इसकी प्लूरल फॉर्म है, राइट। तो द गर्ल हु ईट्स केक इज हैप्पी। तो हमने जो वर्ड्स हैं ईट्स और इज दोनों हमने सिंगुलर गर्ल की बेस के ऊपर चूज किए। So that's the end. There are a lot more rules, but we are not going to be covering them. I think these 12 are more than enough for you for now. So I know there are a lot of rules and you'll have hard time memorizing all of them, but it's not about memorizing them, it's about implementing them, and as you slowly implement them, you'll just naturally absorb all those rules and you won't have to memorize them anymore. Even if you cannot memorize all the rules, the first two rules are very important. Just keep them in mind, please. If there are any issues, of course, we can discuss in classroom. Please watch this video a couple of times if you're unable to understand something.